Hello, dear children. Today we are going to do a new lesson in our social science subject, Gupta Age and Other Rulers Explanation Part 1. Hi, dear children. Good morning to all of you. Today we are going to start a new lesson in our social science book. लेसन नंबर 7 गुप्ता एज एंड अदर रूलर्स। तो इस लेसन में हम गुप्ता एज के बारे में जानकारी लेंगे और उसके अलावा जो दूसरे रूलर्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सो नाउ शैल वी स्टार्ट द लेसन। इन द 3rd century impressive Gupta dynasty was established in Magad. Gupta dynasty established political entity, peace and security in India, which brought unprecedented prosperity. Thus, Gupta age is called Golden Age of India. Golden Age means best progress of all the people. The Gupta rulers gave peace and prosperity to the people, which has even been appreciated by foreign travelers also. गुप्ता एम्परर्स वे क्रिएटर्स ऑफ गोल्डन एज, यानी 3rd सेंचुरी में एक इम्प्रेसिव गुप्ता डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई मगध में। और गुप्ता डायनेस्टी के जो उन्होंने अपनी एक खुद की पहचान एंटिटी बनाई, जो इंडिया में शांति सिक्योरिटी लाया और बहुत उनको प्रॉस्पेरिटी भी मिली। एंड सो इट वाज कॉल्ड द गोल्डन एज, इसीलिए उसको गोल्डन एज कहा जाता है, यानी सुवर्ण युग कहा जाता है। और गोल्डन एज का मतलब उस टाइम पे इंडिया के लोगों का बेस्ट प्रोग्रेस हुआ और गुप्ता रूलर्स ने हर जगह शांति और उन्नति प्रगति लोगों के लिए लेकर आए, और जिसको तारीफ भी मिली फॉरेन ट्रैवलर्स से, और इसीलिए उसको गुप्ता एम्परर्स को गोल्डन एज के क्रिएटर भी कहा जाता है। नाउ वी स्टार्ट अबाउट द किंग Chandragupta first. Sri Gupta was the founder of Gupta dynasty in the kingdom of Magad. His son's name was Ghatotkacha Gupta. Chandragupta first 1319 AD succeeded Patliputra as the successor of King Ghatotkacha. He married Kumar Devi, who was a girl of powerful Lichavi tribe. He extended boundaries of Magad by conquering nearby places like Prayagraj, today it's known as Allahabad, Saket, that is known as Ayodhya. He assumed glorious title of Maharaja Dhiraj in place of Maharaj. In order to show his power and reputation, he started gold coins. Since the accession of his coronation, he started Gupta Samvat. Vallabhi rulers of Saurashtra also accepted Gupta Samvat, and due to initiation of Gupta Samvat, the arrangement of historical events according to the date line was made possible in the history of India. So we come to know that Sri Gupta, he was the founder of Gupta dynasty in the kingdom of Magad, और उनके बेटे थे घटोत्कच गुप्त एंड चंद्रगुप्त फर्स्ट। ही सक्सीडेड, वो अपने पिता घटोत्कच के बाद ही बिकेम द किंग, एंड उन्होंने कुमार देवी से शादी की जो लिच्छावी ट्राइब की एक लड़की थी, और फिर उन्होंने अपनी बाउंड्रीज एक्सटेंड की और बहुत प्रयागराज, इलाहाबाद और अयोध्या हर जगह बड़ एरिया कवर करते गए, राज्य जीतते गए। सो ही खुद को उन्होंने महाराज अधिराज का टाइटल दिया महाराज के बदले, और उनका रेपुटेशन दिखाने के लिए उन्होंने उस ज़माने में गोल्ड कॉइन स्टार्ट किए, और खुद का राज्याभिषेक होने पर उन्होंने गुप्ता संवत स्टार्ट किया। और जो वल्लभी रूलर्स है सौराष्ट्र के, उन्होंने भी गुप्ता संवत को एक्सेप्ट किया, और इसी वजह से जो डेट लाइन था हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वो पॉसिबल हुआ। नाउ वी कम टू एम्परर समुद्रगुप्त। After Chandragupta, his majestic son Samudragupta came to power. Information about Samudragupta's time is obtained from pillar inscription of Prayagraj, that is Prayag Prashasti, and his coins. This Prashasti has been composed by royal poet Harishen. It describes the victories and cultural achievements of Samudragupta. So, the achievements of Samudragupta: in very short time he made his triumphant journey from northern states to the Kushan rule of Afghanistan. He defeated about 12 kings in south. After defeating these
kings, he restored them wisely. He restored their kingdoms, and governors and officials were appointed to रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. यानी चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे समुद्रगुप्त राजा बने. और ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस टाइम पे जो पिलर इंस्क्रिप्शंस प्रयागराज में प्रशस्ति यानी जो भी उन्होंने अचीव किया उसके बारे में और कॉइन से हमको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. और वो जो प्रशस्ति है वो रॉयल पोइट यानी राज कवि हरिसेन ने की थी. इसमें बताया जाता है कि समुद्रगुप्त ने कैसे विक्ट्रीज हासिल की, कहाँ कहाँ, और उनके कल्चरल अचीवमेंट्स क्या है वो सब. और थोड़े ही टाइम में उन्होंने नॉर्दर्न स्टेट्स की से लेके अफ़गानिस्तान तक पूरा अपना जर्नी किया और एरिया कवर किया. और उन्होंने साउथ के 12 किंग्स को हरा दिया. एंड आफ्टर डिफीटिंग देम ही रिस्टोर्ड देम वाइसली. उनको फिर से अच्छी तरह से रिस्टोर किया गया और उनके किंगडम्स को भी, और फिर गवर्नर्स और ऑफिशियल्स भी रखे गए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो. नाउ समुद्रगुप्त वॉज अ ग्रेट कॉन्करर एंड अ कल्चर्ड एम्परर. His literary achievements and his character was notable. He composed many poems and got the title of Kaviraj. Unfortunately, not even a single poem of his is available today. One coin shows Samudragupta playing veena, which शोज हिज लव फॉर म्यूज़िक. यानी समुद्रगुप्त बहुत अच्छे राजा थे. उसने बहुत एरिया कवर किया, यानी ग्रेट कॉन्करर बने. कल्चर्ड एम्पर यानी कल्चर की तरफ भी उनका बहुत प्यार था. और उन्होंने जो नॉलेज के लिए लिटरेरी अचीवमेंट है वो भी उनका नोटेबल था. उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी, इसकी वजह से उनको टाइटल मिला कविराज. लेकिन उनकी लिखी हुई एक भी पोएम आज हमारे पास नहीं है. एंड एक कॉइन में समुद्रगुप्त वीणा बजा रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि उनको म्यूज़िक बहुत पसंद था. ड्यूरिंग हिज reign, many temples, monasteries and Jain temples were constructed. He performed Ashwamedh Yagna. In this regard, he had got coins made. He collected scholars in his court and created high quality literature. Or scholars wanted he wanted scholars' companionship. He encouraged Hinduism. He embraced social customs. Samudragupta's position in the history is unique and significant. He was the creator of importance of Gupta Empire. यानी उनके टाइम में बहुत से मंदिर बनवाए गए, मोनेस्ट्रीज यानी साधु संत के रहने की जगह बनवाई गई, टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स बनवाए गए. उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया और इसके लिए उन्होंने कॉइन्स भी बनवाए थे. और उनके कोर्ट में बहुत से महाज्ञानी स्कॉलर्स वगैरह थे और लिटरेचर बहुत उनके टाइम पे हाई क्वालिटी का था. और स्कॉलर्स जो थे उनको उनकी कंपनी अच्छी लगती थी और उनको स्कॉलर्स की कंपनी अच्छी लगती थी. और उन्होंने हिंदू धर्म को बहुत एनकरेज किया. इसके अलावा समुद्रगुप्त सोशल कस्टम्स भी बहुत मानते थे. एंड उनके टाइम पे ये बताया जाता है कि समुद्रगुप्त एक हिस्ट्री में एक महान राजा थे और उन्होंने गुप्ता एम्पायर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिलवाया. Now here you can see these are the coins of Gupta age. These coins you can see different types of coins are there. Now we will see about Chandragupta II, that is Vikramaditya. Samudragupta died. In his place, Chandragupta II came to the throne. He not only successfully preserved the great legacy of his father, which he inherited, but also expanded the empire by conquering some of the regions. Chandragupta II was the most talented ruler of Gupta dynasty. The boundaries of his empire extended up to Shak kingdom. He attacked Gujarat and ended Shak Kshatrap dynasty. In the memory of this victory, he adopted the title Shakari. He was also called Vikramaditya. यानी समुद्रगुप्त के मरने के बाद उनके बेटे चंद्रगुप्त सेकेंड राजगद्दी पे आए और उन्होंने अपने पिता के जो लेगेसी थी उसको वो आगे ही ले गए, उनको अपनाया भी और उसको आगे भी बढ़ाते गए. एंड ही कॉन्कर्ड मैनी रीजन्स. एंड चंद्रगुप्त सेकेंड बहुत टैलेंटेड थे और उन्होंने अपनी बाउंड्रीज शाक किंगडम तक एक्सपांड की और गुजरात पर अटैक करके उन्होंने शाक क्षत्रप डायनेस्टी को ख़त्म किया. इसी की याद में उन्होंने टाइटल एक्सेप्ट किया शाकारी और उनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है. He increased his military power by establishing marital relations with powerful kingdoms to remove Shak Kshatrap, who had been ruling since 300 years. These marriages proved to be very helpful in increasing the empire
his empire and defeating his enemies. New territories won by him were very important. They obtained the rich kingdom of Gujarat and Saurashtra, the prosperous ports of Bhrigukach, that is Bharuch, and Stamtirth. As a result, maritime trade of the state increased and Gupta kings became owner of intangible property. यानी उन्होंने मिलिट्री पावर को भी बढ़ा दिया. कैसे कि उन्होंने मैरिटल रिलेशंस यानी दूसरे जो किंगडम्स होते हैं पावरफुल किंगडम्स उनके घरों में शादियां करके उन्होंने रिलेशन बढ़ाए, एकदम पावरफुल किंग मिलिट्री पावर बढ़ा दिया. और फिर शाक क्षत्रप को निकालने के लिए जो 300 साल से रूल कर रहे थे उन्होंने ये किया. और इस मैरिज की वजह से उन्होंने अपना एम्पायर बहुत बढ़ा दिया और काफ़ी सारे एनिमीज़ को हरा दिया. और जो नई टेरिटरीज उन्होंने जीती वो सारी उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी. और उन्होंने जो रिच किंगडम्स गुजरात और सौराष्ट्र के थे वो भी उन्होंने अपनी विक्ट्री में शामिल कर लिए. एंड प्रॉस्परस पोर्ट्स यानी पे जहाँ से पोर्ट्स शिप्स आती है जाती और बिजनेस होता है वो भी उन्होंने जीत लिया. उसमें एक आता है भृगुकच जो भरूच में है और स्तंभतीर्थ जो खंभात में. और इसकी वजह से मैरीटाइम ट्रेड जो था यानी जो दरियाई मार्ग से जो बिजनेस होता था वो भी उन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया और उनकी प्रॉपर्टी भी काफ़ी बढ़ गई. Now here you can see all this area is covered by Gupta dynasty. सारा most of the part of India was covered by them. Ganga, Narmada, Patliputra all. And here you can see map of India during Gupta period. ये सारा map वही है but this all area is covered by the Gupta dynasty. Now we will see that Fa-Heng is a Chinese pilgrim in the time of Chandragupta II praised administration and prosperity of the Gupta Empire. Though Chandragupta II was Vaishnav, he had great respect for other religions. His chief Amrakar Dev was Buddhist and his state minister Varsen was a Shaiv. Many monasteries were there in the capital Patliputra. यानी फाहेंग जो चाइनीज़ के एक पिलग्रिम थे जो इंडिया आए थे उन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त के सेकंड के जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनके प्रॉस्पेरिटी थी गुप्ता एम्पायर की उसकी उन्होंने बहुत तारीफ की. और चंद्रगुप्त सेकंड वैसे तो वैष्णव थे बट ही गिव रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन्स ऑल्सो. एंड उनके जो आर्मी चीफ थे अमरकर देव वो एक बुद्धिस्ट थे और इनके जो स्टेट मिनिस्टर वारसेन थे वो एक शैव थे यानी वो शंकर भगवान को मानते थे. और उन्होंने बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनवाई अपने कैपिटल पाटलिपुत्र में. Besides of cultural achievements achieved during his reign, the Gupta age could become the golden age. He was the patron of scholars and poets. The great Sanskrit poet and playwright Kalidas was his royal poet. Dhanvantri was his royal Vaidya. Gems like scientist Varamihir, Vaital Bhatt, writer of Amar Kosh, Amar Singh, etc. used to adorn the court. During his rule, sculpture and drawing developed. Many of art pavilion of Ajanta caves were made during his time. He built a number of Buddhist monasteries in the capital Patliputra. Mehroli iron pillar near Delhi was made during his reign, which has not rusted for centuries despite being in heat and rain. और उन्होंने कल्चरल अचीवमेंट भी बहुत हासिल किया. गुप्ता एज को गोल्डन एज बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था और उन्होंने स्कॉलर्स और पोएट को बहुत सपोर्ट किया, उनको आगे लाए. और जो ग्रेट पोएट और प्लेज लिखते थे कालिदास वो भी उनके कोर्ट में थे. और धन्वंतरी जो राजवैद्य है वो भी उनके कोर्ट में थे. फिर वारामिहिर, वैताल भट्ट जिन्होंने अमरकोश और अमर सिंह लिखा है वो भी उनके कोर्ट के की शोभा बढ़ाते थे. और उनके रूल में स्कल्पचर्स ड्राइंग बहुत डेवलप हुआ और अजंता के केव्स भी वहाँ पे उस टाइम पे बनाए गए. और उन्होंने बहुत सारी बुद्धिस्ट मॉनेटरीज भी अपने कैपिटल पाटलिपुत्र में बनवाई. और मेहरौली दिल्ली के पास जो है वो आयरन पिलर उन्हीं के टाइम पे बनाया गया और इतने सालों में वो अभी तक रस्ट हुआ नहीं यानी उसको जंक लगा नहीं है. इतने साल बीतने के बाद बावजूद गर्मी धूप की होने हो तब भी वो रस्ट नहीं हुआ है. सी दिस इज द पिलर ऑफ मेहरौली आयरन पिलर नियर दिल्ली. ही मेड उज्जैन इज अनदर कैपिटल. बिसाइड्स Patliputra, he divided the state into different administrative units for running streamlined administration.
In the year 1414, the great emperor चंद्रगुप्त विक्रमादित्य died. और उज्जैन को उन्होंने अपना दूसरा कैपिटल बनाया, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा उज्जैन, और उन्होंने स्टेट को अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर लिया ताकि जो उनका काम काज है एडमिनिस्ट्रेशन एकदम अच्छी तरह से हो. और 1414 में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य died. And now end of Gupta dynasty. After the death of Chandragupta II, his majestic son Kumargupta I came to throne. During his time, some famous caves of Nalanda and some caves of Ajanta were erected. After Kumargupta I, his brave son Skandagupta came to power. The weak rulers of post Skandagupta time could not withstand the onslaught attacks of the obsessive and powerful Hunas, and गुप्ता एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इन 1550 AD. फिर कुमारगुप्त फर्स्ट के बाद उनका बेटा स्कंदगुप्त राजा बना, लेकिन स्कंदगुप्त के बाद जितने भी राजा बने वो सारे वीक थे और जो अटैक उनके ऊपर होते रहे बार बार वो उनको फेस नहीं कर पाए, और इसकी वजह से गुप्ता डायनेस्टी धीरे धीरे ख़त्म होती गई इन 1550 AD.